जेएमसी की बहनों भाइयों, आपकी खिदमत में सरफराज हाजिर है और फिर अच्छी ख्वाहिशात, खुदावंद की बरकत और खुदावंद की सलामती आपके लिए चाहता हुआ आज फिर स्टूडियो से आपसे मुखातिब है। आप जानते हैं कि खुदा ने हमें जो मौका दिया है हम इसको खोना नहीं चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करके और इस खुदावंद के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करके हम बड़े खुश होते हैं और इससे बरकत मिलती है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं करते उन पर आज ध्यान करेंगे। और जब भी मैं बाइबल मुकद्दस पे से पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा जो छोटी छोटी बातें हैं पहले, इससे पहले के बड़े भेद खोले जाएं, हम छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। खुदा का शुक्र हो कि आज फिर पैम मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी दिनों के बाद, यानी कुछ पता लगा कि सेहत ख़राब है और सर्दी की वजह से काफ़ी बहन भाई पैम जी सेहत की वजह से, ख़राबी की वजह से हमें कुछ रिपोर्ट्स मिलती रही और आपको भी सर्दी ने नहीं छोड़ा। हालांकि आप खुदा के कलाम में और खुदा की मोहब्बत में बड़ी गर्मजोश हैं। आमीन। आज आपको आपके हवाले करता हूँ माई। हाँ जी, thank you very much, Azizo. Welcome to Glory TV. It is your channel and it certainly has become my favorite channel too. Isn't that great? It's good to give thanks to the Lord, and this evening once again we are in the presence of the Most High God. And as we were coming on the way, I was saying to Safraz, I really feel like rejoicing and dancing before the Lord, because a time has come when the gospel is being preached to the non-believers. The gospel is going where it had not gone 11 months ago. So we want you to rejoice with us, saints. There's great news. People are coming to know the Lord, and there are people just calling us day and night and saying, we want to know that living God. We want to get closer to the Lord Jesus that you talk about on Glory TV 24/7. So our hearts are definitely very warm, and I literally heard Father God smile back at us to say, well done, and I want you to continue to do what you can do, and then wait and see, for I am good. So we are very patiently, Safraz and myself, and of course the entire members of Glory TV, or the entire Glory Parivar, Glory Khandan is patiently waiting. Okay, we will see that financial breakthrough before the end of this month. In fact, before the 20th of this month, the Lord is going to bring us through. So we're not going to be discouraged. We should give thanks to the Lord for all that He has done, for all these months, in fact, for all these years that we've been on this earth. He has fed us, He's looked after us, He has provided every need. In fact, He's provided more than we need throughout all the days. And if we look at the times that the Bible speaks about, all the famines and all the troubles and the wars and battles and everything that was fought, but yet the servants of the Most High God always gave thanks to His holy and precious name. So we want to see the covering, the precious hand of our Lord upon this program, and also on your family and your household, wherever you're watching Glory TV, in your home. We pray very humbly before the Lord. Lord, as we begin to speak of your word, or as we begin to bring the word of God into our friends, our families' lives, may it multiply and become a blessing, not just for ourselves, but also for the generations to come. So Lord, very humbly we commit this hour into your hands, Safraz and myself, and the entire Glory TV Khandan, Parivar, wherever they're watching, Lord, that Lord, tonight our hearts will be lifted up as we look through the scriptures to know that our strength and our provision comes from your word, and it comes from you alone. So Lord, in the midst of all the storm, the snow and everything that we've had, Lord, we have patiently waited for you to clear that snow, that we could go about and come into the studio and bring the word of God before our people. So Lord, in the time that we have spent behind closed door, I just pray that we have found more strength and more faith in you, Lord, in a time when we thought if this weather was going to continue and whether we were going to be able to move forward in the next 2 days or not. But Lord, in your gracious mercy, you've cleared the snow, and we are able to go about
doing the things that need to be done. So Father God, as we sit here together with the family for the next hour, I pray, Lord, that it will be a rich blessing for all of us as we go through the scriptures. And once again, Father, we want you to be the unseen guest among us as you lead us through your word, because your word has the power, it's a living word, it's a spirit, and it has life. And Lord, we want more of your life. We want more of your life through your word. So Lord, we are committing everything into your precious hands. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Thank you very much, Sarfraz. पैम, जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे बहन भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जी बिल्कुल किसी एक बड़े घर में और वो बड़ा घर वही है जहाँ हमने जाना है आमीन हालेलुया है ऐसा कोई बड़ा घर ऐसा अहाता या कोई ऐसा दुनिया में घर नहीं कि जहाँ लाखों लोग बैठ सकें करोड़ों लोग और बिलियंस के हिसाब से लेकिन एक ऐसा घर है जहाँ हम जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं। मुझे वो गीत याद आ रहा है जब हम चर्च में गाया करते थे, चलो मेरे साथ बाप के घर में। हाँ, बाप के घर में वहाँ खुशी मनाएंगे। हालेलुया, यीशु राजा है, बाप के घर में वहाँ खुशी मनाएंगे, है ना। बहुत खूबसूरत गीत है। हाँ जी पैम जी, लेकिन वहां तक जाने के लिए मैं आज ना हम बहन भाइयों के साथ एक स्टोरी में कहानी जो बहुत ही पॉपुलर है खरूज की किताब में, एक्सोडस में, उसको पढ़ेंगे लफ्ज़ बलफ्ज़। आपने हजारों मतलब के वक्त जो है कई दफा इसको सुना, चर्चेस में सुना, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है। और फिर मैं एक बात करना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं उस कहानी को जो मूसा की कहानी है उसको पढ़ें और उससे कुछ सीखें। सिर्फ पढ़ने से सीख जाएंगे, मुझे यकीन है कि हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि बहुत बहन भाई कहते हैं कि ड्रीम क्या होते हैं, ड्रीम। और अब बाइबल के अंदर जो मैं उसको इस कहानी के साथ उसको मैं मिलाना चाहता हूँ कि ये ड्रीम क्या है, ख्वाब जो है हमारे सपने, ख्वाब ये क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ये कैसे आते हैं। अच्छा, बहुत सारे बहन भाई सोचते हो कि आज सरफराज अक्सर ज्यादा टेलीफोन अभी ये आने शुरू हो कि आपने जी वो ड्रामे में बहुत अच्छा काम जाहिर है किया है। अच्छा, भी मैं बिफोर द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ ऐसा इनाम देना चाहिए, है ना? और स्पेशली जो ये पीछे जो ड्रामा गुजरा है, एक जगह मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये जो नाम आप चुन के लाते हैं वो कहाँ से। अच्छा, तो वो भी भाई मेरे बहुत ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दे, कहते ये कहाँ से नाम लेके आते हो, ये कुगी और ये और किस्म के तीर तुक्का, डॉक्टर तीर तुक्का। तो लेकिन हमारा सारी इन बातों का कि बहन भाइयों तक वो जो बाइबल को बहुत गहराई के साथ नहीं समझ सकते, उनके पास बाइबल मुकद्दस को किसी स्टोरी के जरिए, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी तमसीलों के जरिए समझा, और बहुत सारी तमसीलें ऐसी को जमीन से ताल्लुक रखती हैं, आसमान की बातें हैं, दरख्त की बातें हैं, पानी की बात की है, ठीक है, परिंदों की बात की है, घास की बात की, घास के फूलों की बात की। ये जो कहानियां हैं वो जो हमारी जिंदगी के साथ जिनका बहुत ताल्लुक है, उन बातों से खुदा ने हमें बताया। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आसमान की कई बातें, मैं झूठी स्टोरी आपको सुना दूं, कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो गया, लेकिन बाइबल में कुछ लिखा है जो अपनी तरफ से मैं बना के बता दूं। कोई कहेगा यार अब ये किसने जाके देखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी कहानियां खुदा यीशु मसीह ने हमें तमसीलों से बातें की, हमसे और लोगों से, इसलिए कि वो इस बात को बखूबी समझ सके। हल की मिसाल दी है कि हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखना चाहिए। जो जिम्मेदार, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं बहन भाई, उनको ये पता होना चाहिए। जो हल चाहते, हमने भी थोड़ा सा ट्राई किया था और बस एक दफा पकड़ा तो हमें कहा कि ये हमारे बस से बाहर है। बात यह कि हल पीछे मुड़ के देखने की बात है, या तो जो आप हल खींच रहा है, ठीक है ना, जिस पर आप तकिया किए हुए हैं, यानी जो बैल होते थे वो खींचते थे, जो आपको हल चला रहे हैं कहीं उनको जख्मी ना आप कर दें। वो जो लोहे का फल होता था वो कहीं जो बैल होते उनकी टांगों में ना लग जाए निकल के तेजी से, और वो कहते थे कि पीछे मुड़ के ना देखे, अगर बेध्यान हो